Okay, so today we are going to start chapter number 3, right? This chapter is about literature review, how to do critically review the literature. So in the previous chapter, we already discussed how to formulate research questions, how to turn the research questions into objectives, how we can link objective with our research, how to develop a research proposal, right? Once we've done that, the next step is once we've got the we have got the idea, we know what we are going to do, what our research is about. Then the next logical step is to search literature, to critically review the literature, right? Um, so, literature review is, uh, why do we review literature? The first thing is to conduct a preliminary search of existing material so that you know whether this sort of study has already been undertaken or not. Uh, कई दफ़ा ये होता है कि एक ही काम आप करने जा रहे, जो काम आप करने जा रहे थे वो 200 दफ़ा लोगों ने पहले किया हुआ है, उससे मिलता जुलता काम किया हुआ है, ठीक है। सो ये हमने डिटरमिन करना है कि whether this is really going to add worth, right? So existing material also would inform you how the previous studies can help you, right, and can support your findings, right? Um, but most, importantly, it is meant not to repeat already researched work, right? Secondly, to organize valuable ideas and findings. Sometimes you have an idea. Once you start searching the literature, you get more precise terms in the literature search, right? So it helps you to organize your ideas in a better way. Identify other research that may be in progress. So, for example, if you decide to work on like technology teaching, or teaching using technology, right? There might be work undergoing in some other universities or some other research centers, right? So that would also, you can also avail that research, right? Uh, Literature review also help you to generate ideas. जब आप लिटरेचर सर्च करते हैं, आप 8, 10, 15 आर्टिकल देखते हैं, आप देखते हैं, आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स लोगों ने यूज़ किए हुए हैं, कौन सा नया वेरिएबल इसमें आजकल आ रहा है, पोटेंशियली किस और वेरिएबल का लिंक नज़र आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जब आप करते हैं ना, generate research ideas, it helps you to generate new research ideas. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको सिर्फ लिटरेचर पढ़ने से बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा ये वेरिएबल जो है ना यूज़ हो सकता है, मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ हो सकती है. सो इट ऑल हेल्प्स यू टू build ideas, right? And to develop critical perspectives. What is critical perspective? You know, we already talked, we talk a lot about critical perspective. बहुत दफा आपने सुना है कि जी critically review, critically analyze. What is critical? Critical critical literature review. Critical literature review means that we do not have to copy and paste literature from different literature sources. वो एक दो किसी ने वो मैं सुना था, उन्होंने कहा जनाब वो लिटरेचर रिव्यू में तो सिर्फ लिटरेचर होना चाहिए, उसमें आपको अपना कोई लफ्ज़ नहीं होना चाहिए. ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप ये देखिए, पहले समझें कि लिटरेचर रिव्यू का मतलब ही है द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. यू आर डूइंग द रिव्यू. आप ये नहीं कह सकते कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो सिर्फ कॉपिंग और पेस्टिंग और आपने सिर्फ लिटरेचर के अलावा और कुछ नहीं लिखना, राइट? सो literature review is
like you know, it is a critical literature review means that number one, uh, you your the style of writing literature, style of reviewing literature is analytical. आप सिंपली ये नहीं कर रहे कि जनाब फलां बंदे ने ये कहा था, आप कह रहे हैं फलां बंदे ने ये कहा था, लेकिन जब उसने कहा था उस वक्त जो है सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी। अब आपका एनालिसिस है, आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से उसे देख रहे हैं, ठीक है। और मेरे इस करंट सिचुएशन पे उसकी फाइंडिंग्स अप्लाई नहीं होती। अब मेरी बात समझ जाए कि आप सिंपली अगर रिसर्च को जनरली हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये इतना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। So, the next thing is critical review of literature. Then, you know, actually your significance of your research is to just give me a minute. We'll carry on. हैप्पी बर्थडे शुआरे। Okay, so sorry. So what I was saying, you know, you have to the significance of your research and what you find out. You have to be, I mean, it has to be in relation to the others' research findings, right? So critical review means you discuss other people's findings and then you evaluate them, right? Now, when we say literature research or literature review, it's very early. It's a one of the earliest stage in the world, in your research. Sorry, one of the earliest stage in your research, right? Now, if you look at this picture, the first thing is research question and objectives. You should be clear about your research objectives and research questions, right? Now remember, this is a very, I mean, it's very nicely drawn diagram, and it really a lot about research review, literature review process, right? So research questions and objectives, they lead you to define parameters for research, generate and refine keywords. I'll give you an example in a minute, right? Conduct search, obtain literature, evaluate, which is very important. It's not simply copying and pasting whatever you find on Google Scholar, right? And then record it. Again, redefine, generate keywords again, start drafting the review, redefine parameters, generate new terms,
conduct search, obtain literature, evaluate it again, record it, update and revise draft, redefine parameters, research, start searching again, conduct your search again, obtain literature, evaluate, record, and then it goes on. So what we understand from this, जनरली हम ये समझा जाता है कि जनाब पहले रिसर्च क्वेश्चन होता है और आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया और उसके बाद आप अपना मेथोडोलॉजी लिखें और काम करना आगे डेटा एनालिसिस करना शुरू कर दें। अब ये हमें डायग्राम ये बताती है कि अगर आपने लिटरेचर क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस से गुजरना है तो इट इज़ नॉट, आई मीन इट ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स वेरी अर्ली, लेकिन ये आपकी थ्रू आउट रिसर्च आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो कंटिन्यू रहे। रिव्यू रिसर्च क्वेश्चन आप और ऑब्जेक्टिव्स जब डिफाइन करते हैं, आप बहुत दफ़ा होता है कि रिसर्च जब करना शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली आपको पता चलता है बहुत सारी और की टर्म्स भी हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है। आपने कहा है कि मैंने इम्पैक्ट देखना है कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट क्या है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में, ठीक है। ट्रेनिंग के बारे में एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग कैसे इम्पैक्ट करती है। अच्छा, अब आप कहते हैं मैंने दो की टर्म्स डिफाइन की, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस। अब आपको बहुत सारे अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। की टर्म्स आप डिफाइन करते हैं, इन एरियाज में सर्च कंडक्ट करते हैं। कर रहा हूँ, लोगों ने ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस की बात की हुई है, किसी ने खाली ट्रेनिंग की नहीं, किसी ने ये बात किया है ट्रेनिंग की अवेलेबिलिटी, यानी ट्रेनिंग के होने या ना होने से परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी ने कहा नहीं भाई होने या ना होने का मतलब नहीं, असल में ये देखना चाहिए कि ट्रेनिंग किस हद तक इफेक्टिव है, ठीक है। ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस के अलावा लोगों ने ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन तो ट्रेनिंग ऑफर कर रही है लेकिन एम्प्लॉय इसमें बड़ा एंगेज नहीं, सॉरी। अच्छा, अब इसी तरह आपको ये भी पता चला रिसर्च करने के दौरान कि कई लोगों ने कहा है कि सिर्फ ट्रेनिंग इटसेल्फ मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि ट्रेनिंग से एम्प्लॉय को ये लगता है कि एक और बर्डन उस पर डाल दिया गया, ठीक है। इसलिए तो वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड हो तो वो ट्रेनिंग जो है परफॉर्मेंस की तरफ लीड करती है और उससे एम्प्लॉय की कमिटमेंट बढ़ती है। तो कई लोग, आपको एक और नई टर्म का पता चल जाएगा जी, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस, ठीक है। आप ट्रेनिंग और बज़ाहिर डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस बड़ी दो, आप वैसे सोचें ट्रेनिंग के बारे में तो आपके जहन में कभी नहीं आएगा कि डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस जो है वो ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। ये डेवलपमेंटल ट्रेनिंग, राइट। जैसे जैसे आप लिटरेचर सर्च करेंगे, लिटरेचर से आपको नई टर्म्स मिलेंगी जो आपको पता चलेगा कि ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। और ये उसी वक्त होगा जब आप बड़ा केयरफुली, आप सिर्फ ये नहीं करें दो करें, नई टर्म्स निकलती हैं, जनरेट एंड रिफाइन, once it is done then you start recording it, right? Now once you record it, अगला मरहला ये है कि स्टार्ट ड्राफ्टिंग योर रिव्यू। ड्राफ्ट करते हुए आपको दोबारा पता चलेगा, नई कुछ आइडियाज आएंगे, आप उन्हें रीड्राफ्ट करेंगे, नई टर्म्स आएंगी, राइट। एंड देन जैसे आपने नई टर्म्स जैसे आपने रीजनरेट की, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस शामिल कर लिया, ठीक है। आपने ये शामिल कर लिया उसमें ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस शामिल कर ली। अब दोबारा आपने परफॉर्मेंस की आपने
ये भी देख लिया कि यार परफॉर्मेंस के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने परफॉर्मेंस की बजाय ट्रेनिंग का इम्पैक्ट एम्प्लॉय कमिटमेंट पे देखा हुआ है या जॉब सेटिस्फेक्शन पे, और उस जॉब सेटिस्फेक्शन से खुद ही परफॉर्मेंस जनरेट होगी, राइट। अब आप अपनी टर्म्स रिफाइन करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सी टर्म आप ऐड कर सकते हैं, कौन सी टर्म आपने एक्सक्लूड करनी है, और दोबारा फिर आप कंडक्ट योर सर्च अगेन, obtain literature again, study it carefully, again evaluate का मतलब है कि आप ये देखते हैं कि आपने नंबर एक इस चीज को समझे कि हम अक्सर ये कहते हैं कि लिटरेचर जो है एवेल्युएटिव होना चाहिए। एवेल्युएटिव लिटरेचर क्या है? एवेल्युएटिव लिटरेचर का मतलब है, एवेल्युएटिव लिटरेचर मींस द लिटरेचर इज क्रिटिकल, राइट। द क्रिटिकल लिटरेचर or evaluative literature means you are not simply reporting it, you are not simply copying and pasting it। आप ये देख रहे हैं कि जनाब कितने लोगों ने, मिसाल के तौर पर कि बहुत से लोगों ने, इस बंदे ने ये स्टडी किया, फला फला ऑथर ने भी इसकी सपोर्ट की, यानी आप उसे सिंथेसाइज भी कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि लेकिन ये सारे के सारे जो स्टडीज पब्लिश हुई हैं, फॉर एग्जांपल, उन सब में डेटा बहुत थोड़ा है और इसलिए इसके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं हो सकते। ये अब आपकी एवेल्युएशन है, ठीक है। या आप ये कहते हैं कि सारे के सारे वेस्ट कंट्रीज में स्टडी हुए हैं, ठीक है, वेस्ट में स्टडी होने की वजह से ये हमारे पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेबिलिटी कम है, ठीक है। आप ये भी कहते हैं कि जनाब क्योंकि ये सारी जो स्टडीज़ हैं इन सारों ने सिर्फ और सिर्फ जॉब जॉब ट्रेनिंग की बात की है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग की बात नहीं की, तो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग का लिटरेचर इसमें मिसिंग है। तो दो चीज़ें आप ये भी देखते हैं लिटरेचर रिव्यू में कि क्या क्या चीज़ लिटरेचर में दी हुई है, और दूसरा आपने ये वैल्यूएट करना था कि क्या चीज़ नहीं है। दिस इज व्हाट मेक्स योर लिटरेचर क्रिटिकल। यानी मैं रिपीट करता हूं कि आपने ये भी बात करनी है कि आप क्या क्या लिटरेचर ने दिया हुआ है, ये भी आपने सर्च करना है, और आपने ये भी रिपोर्ट करना है, ये भी एवेल्युएट करना है व्हाट इज मिसिंग इन द लिटरेचर, राइट। A good literature review evaluates what is available in the literature and where are the gaps, what is missing। उन गैप से आपकी स्टडी की जो है वर्थ बनती है। आप कहते हैं जी ये चीज़ें मिसिंग हैं, इस वजह से मैं इन चीज़ों को मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ, इन गैप्स को, और इससे मेरी स्टडी जो है वो बॉडी ऑफ नॉलेज में बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो इसी तरह जैसे अभी आपको ट्रेनिंग की एग्जांपल दे रहा था, तो ट्रेनिंग की एग्जांपल को मैं ज़रा एनहांस करता हूँ, दोबारा उस पर वापस आते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनाब ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है। उसमें इतनी स्टडीज़ वेस्ट में हुई हैं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में स्टडीज़ कम हुई हैं, और बैंकिंग सेक्टर में बहुत थोड़ी हुई हैं। जो बैंकिंग सेक्टर में स्टडीज़ हुई हैं वो भी इस बात पे हुई हैं कि बैंक्स ट्रेनिंग करवाते हैं कि नहीं, उसमें ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस और ट्रेनिंग क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग पे स्टडीज़ नहीं हुई। और हमारा ये कहना है, आपकी ये वैल्यूएशन है, क्योंकि बैंक एम्प्लॉयज़ बड़े बिजी होते हैं, उन्हें अपने काम के साथ जब एडिशनली ट्रेनिंग का भी कहा जाता है उससे वो उन पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है, इसलिए ट्रेनिंग जो है वो पोटेंशियली यानी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बजाय नुकसान या एम्प्लॉय की कमिटमेंट फर्दर कम कर सकती है। अब आप इस पे लिटरेचर सर्च करते हैं, एक केस बिल्ड करते हैं। लिटरेचर सर्च में आपने लोगों के कोट यूज करते हुए एक कहानी बिल्ड करनी है कि जिन्हें ये चीज ये अवेलेबल नहीं थी और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी नहीं हुई, इसलिए स्टडी करना बड़ा ज़रूरी हो गया, और मैं ये जो है ना ये डेफिशिएंसी जो लिटरेचर में ये मैं पूरी करने जा रहा हूँ। अल्टीमेटली मैं इस रिसर्च को एक इस रिसर्च के साथ बॉडी ऑफ नॉलेज में एक नई चीज़ ऐड करूँगा, ठीक है। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि आप बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड करेंगे कोई चीज़, तो
So now this diagram is extremely important. ये बज़ाहिर बड़ी सिंपल सी स्पाइरल लगती है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें और अपनी रिसर्च में इसे यूज करें, दिस सिंपल डायग्राम मे बी वेरी इफेक्टिव। एक डायग्राम आपको ये बताती है कि एक ही सर्च साइकिल आपने नहीं करना। आपने एक दफ़ा सर्च करना है, सर्च को डॉक्यूमेंट करना है, उससे नई चीज़ें आपने नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, उनको एवेल्यूएट करना है, रीडिफाइन करने हैं पैरामीटर्स, फिर आपने दोबारा सर्च टर्म्स डिफाइन करनी है, दोबारा सर्च कंडक्ट करनी है, दोबारा लिटरेचर लेना है, फिर उसे एवेल्यूएट करना है, फिर एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन थ्रू आउट योर रिसर्च. So at least there should be 3 cycles of at least there should be 3 cycles of literature search. आप देखेंगे जब दूसरी दफा रिसर्च कर रहे होंगे इम्प्रूव्ड टर्म्स के साथ, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिले, ठीक है. पहली दफा ये होता है कि आपके पास कोई रिसर्च आइडिया होता है, आपके दिमाग में होता है, लेकिन आप एग्जैक्टली वो टर्म्स यूज नहीं कर रहे होते जो कि लिटरेचर में सर जी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था. जी सर आ रही है. अच्छा आ रही. सो मैं ये आपसे कह रहा था कि ये लिटरेचर सर्च जो है आपको ये डायग्राम हेल्प करेगी थ्रू आउट योर लिटरेचर सर्च, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव. बड़ी डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका मैं की पॉइंट्स दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कई दफ़ा आप एग्जैक्टली जो टर्म्स लिटरेचर में यूज़ हुई हैं वो टर्म आपके दिमाग में नहीं होती. जब आप सर्च करना शुरू करते हैं तो आपको की टर्म्स मिलती हैं, उन की टर्म्स को दोबारा सर्च करें. जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं आपको मज़ीद सर्च टर्म्स मिलती हैं, आप दोबारा उन्हें देखते हैं, उनको आप लिंक करते हैं अपनी रिसर्च के साथ, और अल्टीमेटली आपकी जो लिटरेचर सर्च है रिफाइन होती जाती है. दूसरा आपको ये सर भी आई पता हैव अ चलता है. क्वेश्चन. मैं बाद में क्वेश्चन आप नोट कर लें प्लीज, मैं आपको करता हूँ आंसर. सो अगर लिटरेचर सर्च में एक दूसरी चीज मैं आपसे ये कह रहा था, जब हम कहते हैं क्रिटिकल लिटरेचर सर्च, इसका मतलब ये होता है कि हमने ना सिर्फ ये देखना है कि क्या चीज़ लिटरेचर में दी हुई है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि क्या चीज़ नहीं दी हुई. यानी थ्रू आउट हमारा मोड एवेल्यूएटिव, उसको एनालिटिकल, क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे ये स्टडी हो चुका है, कहाँ पे नहीं हुआ, अगर ये स्टडी हमें बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दे रही है, क्या इसका सैंपल साइज कम तो नहीं है, अगर सैंपल साइज पूरा है, क्या ऑथर ने कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल मिस तो नहीं किए, क्या ये स्टडी बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं. हम साथ साथ अपनी एवेल्यूएशन भी उसमें ऐड करते हैं. क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू, I repeat, it's not simply reproduction of what is already written in the literature. You have to give your own evaluation, right? So, जी आप कोई क्वेश्चन कह रहे थे, अगर प्लीज आप. सर अगर हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर कोई लिटरेचर देखते हैं तो उस पे हमें काफी सारे लिटरेचर्स मिल जाते हैं, जी जी. तो हम उसमें से कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ. हमने कौन सा सिलेक्ट करना है? कौन से टॉपिक में से कौन सा सेलेक्ट करना है? देखे ना, ये तो आप रिसर्च आइडिया आपका जो भी किसी न किसी आपका इनिशियली कोई रिसर्च आइडिया होता है, ठीक है, आपने ये फैसला किया था मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करनी. अब ये आपका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, ये बड़ा मुश्किल फेज होता है ये फैसला करना कि मैंने रिसर्च करनी किस पे.
अल्टीमेटली इसके लिए आपने पहले से कोई आइडिया बनाया था, फिर आप लिटरेचर में जाते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आपको अंदाज़ा होता है लोगों ने सिमिलर स्टडी से कि लोगों ने किस तरह की स्टडीज़ की हुई है और कहाँ पे अभी तक गैप्स बाकी हैं। उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके आप फर्दर अपना रिसर्च क्वेश्चन भी रिफॉर्मुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा थोड़ा देखें different approaches. You know, discuss these approaches in chapter number 1, deductive approach and inductive approach. So we would discuss it with reference to the literature review now. So deductive approach is to develop a conceptual framework from literature, which is then tested using the data. That means there are already studies available, right? Based on those studies, we develop our conceptual framework. ठीक है, हम अपना ये कहते हैं कि मैं उससे आप की आप ये कहते हैं कि वो जब अब अभी आप आप लिटरेचर सर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को आप बाद में डेटा फ्रेमवर्क के मुताबिक आप डेटा शुरू करते हैं, थ्योरी से हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस जो बनाते हैं उसके मुताबिक डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उस पर फिर अब हो सकता है ये जो आप हम बात कहने जॉब सिक्योरिटी और जॉब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग सॉरी एम्प्लॉय ट्रेनिंग से आपकी कमिटमेंट बढ़ने की वजह से आपका परफॉर्मेंस बढ़ती है। जरूरत ही क्या है। अब अगर आप देखें, मैं आपको मिसाल तो लिटरेचर सेक्टर में जो मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी की वजह से वो डर खौफ कोई नहीं है और इसलिए वो काम बिल्कुल नहीं करते। मैं देखना है कि ये यहाँ पे प्रपोज तो यही हम ये प्रपोज ये कर रहे हैं कि जॉब एक एम्प्लॉय जो ना जॉब सिक्योरिटी जो है वो एम्प्लॉय को सुस्त कर दे। इसलिए मैं डेटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट सेक्टर से देखूंगा और उसे कंपेयर करूंगा स्टडी के साथ, जब होता है सिक्योरिटी से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है या कम होती है। किसी एक इस सिंपल सी मैंने आपको मिसाल दी, सिचुएशन क्रिएट
शुरू करते हैं, आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, अभी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। सर फिर नहीं आ रही। सर फिर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, तो ये मैं आपसे को कहते हैं, आप आवाज नहीं आ रही अभी? नो सर, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है। हेलो अच्छा, एक मिनट यार जरा मैं हेलो, अभी आ रही है आवाज आपको? यस सर आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, बस ना मैं ये वाला राइट डिडक्टिव अप्रोच है। फॉर एग्जांपल आज ये हमें एक रीसेंट ये एपिडेमिक आई कोरोना वायरस। अब हमारे पास कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज नहीं थी। आप लोगों में देखें, पैटर्न देखते हैं, उससे आप थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मसलन लोगों ने डेटा को देखते हुए कहा कि यार नजर आ रहा है कि बच्चों में ये नहीं है, तो एक थ्योरी डेवलप हुई। यानी बजाय इसके कि पहले हम ये ज्यूम करते और फिर बच्चों पे चेक करते, डेटा सोर्सेज को देखते हुए हम ये देखते हैं कि फिर हमने कहा जनाब जो बूढ़े लोगों में इसका डेंजर ज्यादा है, ठीक है, डेटा पैटर्न्स को देखते हुए फिर डेली डेटा पैटर्न देखते हैं, कहते हैं जिन मुल्कों में मास्क लोग पहनते थे उधर ये फैल रहा है,
ठीक है, अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि डेटा और डेटा को देखते हुए हम थियोरेटिकल सर आवाज नहीं आ रही। थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं आप कहते हैं कि वो लोग आप ऑब्जर्व करके जो बहुत आप आइडेंटिफाई करते हैं और आप कहते हैं डेटा पैटर्न ये बताता है कि जनाब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इन्वॉल्वमेंट कम हो गया कम हो, डेटा असम्पशंस डेवलप करते हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव में थे शुरू करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले डेटा को देखते हैं, डेटा पैटर्न देखते हुए अल्टीमेटली थ्योरीज डेवलप करने की कोशिश करते हैं और उन थ्योरीज को लिटरेचर के अगेंस्ट सर्च करते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।